Hello everyone, welcome you all in class 12 geography. This is chapter number 4, Human Settlement of India of Man and Economy book. As you know, food, clothes and shelter, these are the basic need of human being. So basically in the India there is this is a high population country, so that's why generally there is a cluster of dwelling of any type or size where human beings are live. Basically human settlements, the area where the human being settled called as human settlement, but they varies from size or from area. Particularly they varies mean the settlement varies from size from hamlet to metropolitan city, यानी सबसे छोटा जो साइज है सेटलमेंट का उसे हम हैमलेट बोलते हैं, और सबसे बड़ी जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं दे कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. नंबर ऑफ सेटलमेंट आर देयर. दे में बी स्मॉल एंड लार्ज क्लोज और स्पेस्ड. अब ये सभी जो हैमलेट और मेट्रोपॉलिटन सिटी तक का जो डिफरेंस है वो स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, इनके बीच में स्पेस भी हो सकता है या कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं. सो दे में बी practice primary, secondary or tertiary activities, so that there are number of kind settlement exist in India. Basically we can divide on the basis of society. There are two type of settlement, rural settlement and urban settlement. यानी सोसाइटी के बेसिस पर हम दो एरियाज में सेटलमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, रूरल एंड अर्बन. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स. सो सी द डिफरेंसेस. Basically, rural settlement or the people done the primary occupation, and urban areas engage in other than primary activities. Rural areas provide raw material for the urban areas basically and work as a rural hinterland. Urban areas process on the raw material which we get from the rural area and produce more valuable goods. Then produce food, they provide services. The income of rural area is low, the income of urban area is high. There is a low density of population in rural areas, but there is a high density of population in urban areas. Settlement time, there is a space between different settlement in rural area, and clustered, or we can say there is a close space between the houses in the urban areas due to the low availability of land for the settlement. Now we will see the type of rural settlement. First, clustered, semi-clustered, hamleted, dispersed. So these are four major kind of रूरल टाइप ऑफ सेटलमेंट. फर्स्ट इज क्लस्टर्ड, यानी जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं. क्लोजली बिल्ट हाउसेज कॉल्ड एज क्लस्टर्ड सेटलमेंट. देन लिविंग एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स. रिकग्नाइजेबल पैटर्न, इनमें पैटर्न हम एक अकॉर्डिंगली दे सकते हैं. डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेपेब लाइक रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट इन द रूरल एरियाज इन क्लस्टर्ड फॉर्मेट. Sometimes defense may cause shape of the settlement. Availability of water also decide the shape. So these are the basic characteristic of clustered settlement. सेकेंड टाइप सेमी क्लस्टर्ड, यानी क्लस्टर्ड तो है, क्लोजली बिल्ड तो है, लेकिन थोड़ा सा उसमें वेरिएशंस है. फॉर्म ड्यू टू द रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टर्ड इन रेस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ द डिस्पर्स सेटलमेंट. यानी कि जो क्लस्टर्ड एरिया थे उन एरियाज़ में कुछ डिस्ट्रिक्ट एरिया ऐसे होते हैं और वो वहाँ से दूर कहीं जाकर रहने लग जाएं, डिस्पर्स हो जाए वहाँ से. सो दे कॉल्ड एज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट. सेग्रीगेशन और लार्ज सेटलमेंट में ऑल्सो कॉजेज फॉर दिस थिंग. Some may be forced to live separately from the villages. As you know, the basically money holders or the rich person forced to poor person or the lower categorized person or the backward classes to move away from the center rural area. So these people have to exist in the another or the surrounding part of the clustered area. So this kind of settlement called as semi-clustered area means these clustered area और सेमी क्लस्टर्ड एरिया एग्जिस्ट फार अवे फ्रॉम दिस क्लस्टर्ड एरिया. यानी ये सेमी क्लस्टर्ड एरिया क्लस्टर्ड एरिया से कुछ दूरी पर जाकर बनते हैं, जिन्हें मेन रूरल एरियाज के सेंटर पार्ट से निकाल कर बाहर भेज दिया जाता है. डोमिनेंस ग्रुप लाइक इन द सेंटर ऑफ द विलेजेस. पीपल ऑफ लो स्ट्राटा लिव इन आउटस्कर्ट ऑफ द विलेजेस. लोअर स्ट्राटा यानी जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है या जो लो कैटेगराइज्ड हैं या जिनका सोशली बैकवर्ड है, ऐसे लोग इन आउटस्कर्ट्स में बेसिकली मिलते हैं.
मोस्ट कॉमन इन गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में ऐसे जो सेटलमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं रूरल एरियाज़ में। नाउ हैमलेटेड फिजिकली सेपरेटेड एंड लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस हैविंग कॉमन नेम, यानी फिजिकली सेपरेटेड यानी नेचर ने जिनको डिवाइड किया है लाइक माउंटेनियस एरिया में या किसी प्लेटू में या डेजर्ट रीजन में जो सिंगल 1 और 2 सेटलमेंट होते हैं दे कॉल्ड एज हैमलेटेड सेटलमेंट। दे आर लोकली कॉल्ड पन्ना, पारा, पाली, नगला, ढानी, यानी अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नेम हैं। दे आर मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर, सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन या एथनिक फैक्टर, रीजनल कल्चर, ये सारी चीज़ें इन हैमलेटेड सेटलमेंट के फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। फाउंड मोस्टली इन मिडिल एंड लोअर गंगा वैली, यानी कि जहाँ मिडिल और लोअर गंगा वैली है, जहाँ फर्टाइल एरिया है, उन एरियाज़ में इस टाइप के हैमलेटेड काइंड के सेटलमेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देन डिस्पर्स सेटलमेंट, दे आर आइसोलेटेड हर्ट्स आर हैमलेट्स। ये हैमलेट की वो सेटलमेंट्स हैं जो आइसोलेटेड होती हैं, यानी सिर्फ 1 या 2 हर्ट्स वहाँ पर होती हैं। लोकेटेड ऑन हिल ऑन एग्रीकल्चर लैंड, हिली एरियाज़ में या एग्रीकल्चर लैंड पर ही लोकेटेड होते हैं। इट इज़ ड्यू टू नेचर ऑफ टेरेन एंड लैंड रिसोर्स वाटर। फाउंड इन मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरला एट्सेट्रा। नाउ विल सी द अर्बन सेटलमेंट. So urban settlement compact and large in size basically because there is a overpopulation, crowded areas in urban area. नॉन एग्रीकल्चर, यहाँ की पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज होती है लाइक इकोनॉमिक, एडमिन एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा. एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिकॉज दे प्रोसेस ऑन रॉ मटेरियल गॉट फ्रॉम रूरल एरिया एंड डायरेक्टली लिंक विद द रूरल सेटलमेंट्स. इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़, बेसिकली सिटीज़ का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, किस किस टाइप से हुआ. तो सबसे पहले बने थे एंशियंट टाइम, देन मिडाइवल टाउन्स एंड द मॉडर्न टाउन. अर्बन एरिया को हम टाउन्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं. सबसे एंशियंट टाउन जो बेसिकली रिलीजन और कल्चर के हिसाब से डेवलप हुए थे, नियर अबाउट 2000 ईयर अगो ओल्ड हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पटना, वाराणसी, मदुरई एक्सेट्रा. मिडाइवल पीरियड में जो सिटीज़ डेवलप हुई, टाउन्स डेवलप हुए, दे आर द हेडक्वार्टर ऑफ किंगडम. जो डिफरेंट किंगडम्स थी, चाहे किसी भी किंग की हो, उनकी हेडक्वार्टर्स जो बनते या कैपिटल की फॉर्म में थे, उनके फॉर्म में डेवलप हुए. मोर देन 100 टाउन्स, दे आर 4 टाउन डेवलप ओवर रिन्यूड फोर्ट्स. दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, इसी टाइप के मिडाइवल टाउन्स के इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं. देन मॉडर्न टाउन, दे आर डेवलप बाय द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस. ब्रिटिश और अदर यूरोपियन लाइक डच, फ्रांसीसी, पुर्तगीज जब डिफरेंट टाइम पे इंडिया आए तो उन्होंने जिन एरियाज़ को डेवलप किया दे कॉल्ड एज मॉडर्न टाउन. जनरली लोकेटेड इन कोस्ट बिकॉज ये सारी जो यूरोपियन कंपनीज थी वो यहाँ पर ट्रेड के लिए आई थी. दैट्स वाई दे लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया. दे वर फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय यूरोपियंस. एग्जाम्पल सूरत, गोवा, पौंडीचेरी, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता एट्सेट्रा. एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर लाइक चंडीगढ़, गांधीनगर, दिसपुर. These are the planned cities as after independent India. If we talk about the urbanization in India, so near about 28% population is urbanized or urbanization in India. Urbanized developed 11-fold during 20th century and it is due to the development of planned city. If we classified the population on the population size, basically the division of urban area we can done on the basis of पॉपुलेशन साइज़, यानी पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से हम अर्बन एरिया को डिवाइड कर सकते हैं. क्लास 1 में जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अबव है वो क्लास 1 में आएंगे. टाउन एरिया जिनकी 50,000 से 1 लाख के बीच में है वो क्लास 2 में आएंगे. जिनकी 20,000 से 50,000 के बीच में है वो क्लास 3 में आएंगे. देन 10,000 टू 20,000 क्लास 4, 5 to 10,000 5 and below 5,000 class 6 urban areas on the basis of population size. 1.5 million is called metropolitan cities, यानी जिन cities की population 1.5 million या उससे क्रॉस कर जाएगी दो cities called as metropolitan cities and 5 million mega cities. और जिन areas की population 5 million क्रॉस कर जाएगी उन cities को हम mega cities बोलेंगे. This you need to learn. 1.5 metropolitan and 5 million mega cities. Urban agglomeration. So towns and its adjoining urban outgrowth
two or more town with or without their outgrowth the city and one or more adjoining example outgrowth railway colony, university, port area, military cantonment, etc. According to the population 2001 census, there were 423 first class towns and 35 metro cities in India. Now, only 6 megacities in India, but now there are 2 other prescribed for the megacities in India also. Then functional, different towns को ये तो हमने ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है. नाउ वी कैन डिवाइड द टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग. यानी फंक्शनिंग कौन कौन से टाउन कौन कौन से फंक्शनिंग करते हैं उनके बेसिस पर हम इन्हें 9 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी सभी कैपिटल्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की फॉर्म में करती हैं और नेशनल कैपिटल दिल्ली ऑल्सो. इंडस्ट्रियल टाउन जैसे मुंबई है, सलेम है, कोयम्बटूर है, मोदीनगर, जमशेदगढ़. सो दीज आर फंक्शनिंग एज अ इंडस्ट्रियल क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज का सेटअप है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है. ट्रांसपोर्ट टाउन लाइक कांडला, कोचीन एट्सेट्रा. कॉमर्शियल टाउन सतना, कोलकाता. ये सब सतना महाराष्ट्र में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में कॉमर्शियल एरिया है, ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. माइनिंग टाउन डिगबोई, रानीगंज, झरिया बोकारो फेमस कोल माइन. डिगबोई फॉर द असम ऑयल area, Raniganj also for the coal. So these are the famous area for the mining, coal and other important minerals. Then garrison cantonment town like Ambala, Mau or Jalandhar important for the army cantonments. Educational town जो education के point of view से important है like पिलानी, अलीगढ़, वाराणसी etc. Religion cultural town अमृतसर, वाराणसी, तिरुपति. एंड टूरिस्ट टाउन लाइक शिमला, मसूरी एंड नैनीताल. सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग कि कौन कौन से टाउन कौन कौन से स्पेशल कैटेगराइज के वर्क कर रहे हैं उनके बिहाफ पे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एंड दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ दीज फंक्शनिंग टाउन्स. थैंक यू.